آپ کو حیران کن بات بتاؤں، میں نے رفع دین پہ جو 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا، اس میں میں نے امام بخاری کی کتاب جز رفع الیدین کا تعارف کروایا تھا۔ امام بخاری نے پہلا تھپڑ علمی ان کے منہ پہ یہی مارا ہے، انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے۔ 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں، پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا علمی تھپڑ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مارا، اور ان کی کتاب ہے جز رفع الیدین۔ دوستو، یہ کتاب امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے۔ محمود بن اسحاق اس کے راوی ہیں، مجہول راوی ہیں۔ یہ پوری ایک ویب سائٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں اس کا اسٹیٹس یہ دیا ہوا ہے کہ یہ مجہول راوی ہے، اور زبردستی سے اس کو زبیر زین معروف لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے۔ اس کی پوری تفصیل میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور اس میں اتنے بڑے بلنڈر ہیں کہ امام بخاری جن سے روایت کرتے ہیں کہ فلاں سے میں نے سنا، وہ 50 سال پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ کثیر تعداد میں اس کتاب میں روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نماز کا طریقہ سکھایا تھا، امام بخاری کی جو اتھینٹک کتاب ہے صحیح بخاری، اس میں تو اس روایت کو لائے نہیں، تو معلوم ہوا کہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ اگر ان کی کتاب ہوتی ہے اور یہ صحیح روایت ہوتی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضرور اس روایت کو اپنی صحیح کتاب صحیح بخاری میں ضرور لاتے ہیں۔ اور اب آگے آپ کو میں دکھانے والا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرے شاگرد بڑے پروانے ہیں، ہر جگہ میری تعریف کرتے ہیں اور میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود کے 15 شاگرد کہتا ہے کہ وہ جناب رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ذرا دیکھیے آپ۔ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے کم از کم 15 شاگرد ایسے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح سند سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، کسی صحابی سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ تو اب 15 تابعین ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے اور مولا علی کے، کسی صحابی سے ترک رفع الیدین ثابت ہیں، یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 257، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، پہلا رفع الیدین کرتے ہیں، بعد میں کوئی نہیں کرتے۔ یہ نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن حدیث ہے، اور ان کے بابا جی شیخ البانی کہتے ہیں کہ صحیح روایت ہے۔ اب کس طرح یہ کھلا جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور جناب حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 شاگرد جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کیا تھی؟ رفع الیدین نہ کرنا۔ تو آپ کے پروانے شاگرد جو ہے وہ رفع الیدین کیوں نہ کریں گے؟ اگر آپ نے کیا ہوتا۔ اس نے اور الزام لگایا کہ جناب وہ سستی کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ اور بلنڈر ہے کہ وہ سستی کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تیرے شاگرد تجھے کبھی نہ چھوڑے، تو کہتا بڑے دعوے کرتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد آپ کے عمل کو چھوڑ دیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد اتنے سست ہو جائیں کہ وہ رفع الیدین کرنا چھوڑ دیں، جو آپ کے نزدیک بہت پیاری سنت ہے، اور تو کس منہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہا ہے؟ امام بخاری کا نام تجھے لینا نہیں چاہیے۔ تو کہتا کہ وہ تمہارے مامے ہیں۔ دیکھیں، عقیدے پر سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ یہ تو مستحب جو کرنے والے وہ بھی کہتے ہیں مستحب، فرض واجب نہیں ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو آگے دکھائیں گے کتنا یہ اسلام میں اور دین میں زیادتی کرتا ہے کہ یہ فرض ہے جناب، اور نعوذ باللہ لعنتیں بھیجتا ہے جو رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور علمی تھپڑ کی جس نے بات کی، امام مالک نہیں کرتے، آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ اور کثیر تعداد میں یہی عمل ہے اور یہی قول ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے۔ یہ امام ترمذی نے 257 جو روایت اس کے نیچے لکھا ہے۔ اور امام بخاری کے بارے میں کیا کہتا ہے جناب سنیے، یہ امام ہے، کہتا ہے امام ہے تمہارے، اور وہ ترک رفع الیدین کر رہے ہیں۔ اچھا، نماز ان کے پیچھے ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ہمیں لا کے کہے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اپنے مامیاں دے فتوے اپنے کول رکھو، مامو پارٹی سانو نہ کوئی فتوا دسو۔ ہم فتوا آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا، اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا۔ تو آڈے بابے تے امام تے شاہی کوئی نہیں، سوری شاہی کوئی نہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی ہے۔ کہتے ہیں ماں میں اپنے پاس رکھ، بھی اپنے پاس تو نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ امام بخاری کی کتاب تو نے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ کیونکہ اس کو جب جواب دیا گیا کہ امام بخاری نے خلق و افعال العباد کتاب میں لکھا ہے کہ روافض کے پیچھے نماز پڑھنا اس طرح جس طرح یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اب اس کو غصہ کتنا ہے؟ ماں میں اپنے پاس رکھو، جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ اب اس کے دوست ہیں، اور ایک علمی اختلاف ہے رفع الیدین پر،
जिसको बहुत सारे मुहद्दिसीन करते हैं, बहुत सारे मुहद्दिसीन नहीं करते, और ये इल्मी इख्तिलाफ जो करते हैं वो भी इसको मुस्तहब समझते हैं। ये इतना बड़ा इख्तिलाफ नहीं जितना शियों से हमारा इख्तिलाफ है, अकायद का इख्तिलाफ है, जिसके पीछे नमाज पढ़ने के बारे में इमाम बुखारी ये कहते हैं, जरा सुने। अब इमाम बुखारी की खल्क़ो अफ़आल अल इबाद दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत लुबनान से छपी है। इसके सफ़ा नंबर 11 रकम नंबर 40 पर इमाम बुखारी रवाफिज के बारे में अपना नुक्ता नजर और नजरिया बयान करते हैं। फरमाते हैं मा उबाली सल्लैतु खल्फल जहमी अर्राफदी अम सल्लैतु खल्फल यहूद व नसारा। राफजियों को इमाम बुखारी ने यहूद और नसारा के साथ मिलाया है। मिर्जा साहब होनार हो रहे थे कि जनाब वो यहूदियों ईसाइयों के साथ मिला देते हैं। किसने मिलाया है? ये इमाम बुखारी ने मिलाया है। खल्क़ अफ़आल अल इबाद, उन रवाफिज को जो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम को बुरा कहते हैं और सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में तानु तशनी करते हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बराबर समझता हूं मैं किसी राफजी के पीछे नमाज पढ़ूं या किसी यहूदी या ईसाई के पीछे नमाज पढ़ूं। यहूदी और ईसाई के पीछे नमाज पढ़ना और राफजी के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक बराबर है। वला युसल्लमु अलैहिम, फरमाते हैं उनको सलाम भी ना किया जाए। वला युआदूना, और वो बीमार पड़ जाए तो उनकी इयादत भी ना की जाए। वला युनाकहूना, और उनके साथ निकाह ना किया जाए। वला युशहादूना, और उनके जनाजों में शरीक ना हुआ जाए। वला तुक़लु ज़बाइहुहु। किसका नजरिया? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। कहता है ये अपने, मैं सहाबा की बात करता हूं और ये इमामों की बात करते हैं। ये अपने मामे अपने को रखो, इमामों को मामे करा देता, और ये है हमारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी फरमाते हैं राफजियों के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नजदीक यहूदो नसारा के पीछे नमाज पढ़ना बराबर है। किसी बिल्ली की दुम काट गई ना। ये दोस्तों आपने देखा और सुना, ये है वो थप्पड़ इल्मी जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मिर्जा को लगाया, लेकिन मिर्जा सह नहीं सका और कहता अपने माम में अपने कौन रखो, और कहता मैं तुम्हें सहाबा के जो है अकवाल बताता हूँ। भाई वो झूठ बोलता है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, 905 नंबर वीडियो, इंजीन मिर्जा के 100 झूठ। पहला झूठ ये दिखाइए, कहता है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खवारिज के जनाजे पढ़ाते थे। हमने इनसे कई मरतबा पूछा जनाब बताएं किस किताब में लिखा हुआ है। आपने ये भी कहा था कि जनाब अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की किताबों में मौजूद है। आज तक ये जवाब नहीं दे सका, तो इसने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बांधा कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खवारिज के जनाजे पढ़ाते थे। झूठों पर अल्लाह की लानत। तो मौला अली जिनको अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि आपने खवारिज को कत्ल करना है, आपने चुन चुन के उनको मारा। और खवारिज कौन है? जहन्नम के कुत्ते हैं। तो जहन्नम के कुत्तों के जनाजे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला पढ़ाएंगे। कितना बड़ा ये झूठ बोलता है। और कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर इनके जनाजे पढ़ाते थे, ये भी झूठ, जाली रिवायतें पेश करता है। इस पर मुफ्ती राशिद साहब का पूरा क्लिप आप देख सकते हैं। और आगे क्या कहता है जनाब, ये भी आप देख लें रफ़ुल यदैन के बारे में। और यहाँ एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसके चेलों ने क्या लिखा जनाब, इस्लाम का किला रफ़ुल यदैन करना इस्लाम और तौहीद का किला है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी जो रफ़ुल यदैन नहीं करता उसने तौहीद के किले को गिरा दिया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला के 15 शागिर्द जो नहीं करते थे उन्होंने तौहीद के किले को गिरा दिया। और अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये भी रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह नहीं करते थे। कसीर तादाद मुहद्दिसीन ताबईन नहीं करते थे। तो क्या उन्होंने इस्लाम के किले को गिरा दिया? तो क्या वो इस्लाम से खारिज हो गए? यानी किस तरह ये लोगों को ये ज़हनियत दे रहा है। एक तरफ अकीदे का मसला है जिसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, शियों के अकीदे खराब हैं, रवाफिज के अकीदे खराब हैं, कुरान और हदीस के मुखालिफ हैं। वो जनाब वो नहीं लेता। जनाब मैं इनको ऐसे मामे अपने पास रखो। भैया हमने अपने पास रखे हुए हैं, हमारे पास इनकी किताबें हैं, आप कम से कम यहाँ से तो किताबें उठा दें। आप देखें किस तरह कहता है कि बिल्ली की दुम कट गई। अब आप देखें कि इसकी दुम कटी है या बिल्ली की कटी है। ख्वाहिश हुई कि सारी बिल्लियों की दुमें काट दें ताकि मैं नुमाया ना हूं। अब यहाँ जो रफ़ायदान नहीं करते थे ना, इनकी दुम कटी हुई थी। वो जी 2 इमाम करते रहे, 2 नहीं करते। अच्छा जी 2 कौन से करते हैं जी? वो अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी करते हैं और इमाम मालिक और इमाम हनीफा नहीं करते, ताकि हम अकेले मुमताज ना हो जाए। भाई कहाँ लिखा है कि इमाम मालिक रफ़ायदान नहीं करते थे? इमाम मालिक की अपनी किताब रूह अर्श पे मौजूद है, अल मोता इमाम मालिक। उसमें नमाज का चैप्टर खोलें, नमाज के तरीके पे एक ही हदीस लेके आए, अब्दुल्ला बिन उमर वाली जो बुखारी मुस्लिम में भी है, और रफ़ुल यदैन के साथ है, अल मुदव्वनतुल कुबरा।
इसमें आपने देखा कि इसने कहा कि कहाँ लिखा हुआ है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रफ़्ल यदैन नहीं करते थे। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इसमें आपने ये भी देखा और सुना कि जनाब अल मुदव्वरतुल कुबरा उनकी किताब नहीं, उनकी तरफ मंसूब है, सही सनद से साबित नहीं। अब कह रहा है, अब आप देखने वाले हैं कि सही सनद से साबित भी है और मोता से भी इसकी ज्यादा अहमियत है। ये भी आप देख लें और सुन लें। किताब इमाम मालिक की तरफ मंसूब है, उसकी सनद साबित नहीं है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह जिनकी जिंदगी पूरी मदीना से गुजरी है, कई ताबईन की उन्होंने सोहबत की है, उनकी जो फिक्र की बुनियादी किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा, जैसे हनफियों की है ना शरा मानिल आसार, जिसे तहावी शरीफ भी कहते हैं, इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी, इस तरह मालकियों की बुनियादी फिक्र की किताब कौन सी है? अल मुदव्वनतुल कुबरा। इसके ऊपर पूरी फिक्र मालिकी बेस है। इसमें डायरेक्ट इमाम मालिक से सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिए हैं। यहाँ पे बात सलफी कहते हैं वो देखें जी वो किताब कंट्रोवर्शियल है। सर आपके कहने से कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगी, फिक्र मालिकी तवातुर के साथ नकल हुई है, वो उस किताब को बुनियादी किताब मानते हैं। अलमुत्ता इमाम मालिक में हाथ बांधना है और जो उनकी फिक्र की स्टैब्लिश किताब है अल मुदव्वनतुल कुबरा उसमें छोड़ना है। तो ज़ाहिर है फिर इसकी हैसियत सानवी होगी, अल मुदव्वनतुल कुबरा की जो हैसियत है वो फिर प्रायोरिटी भी हो जाएगी क्योंकि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना, चूंकि अब शियों को सपोर्ट कर रहा था, वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, तो फिक्र मालिकी में भी हाथ खोल कर नमाज पढ़ते हैं। कहते जनाब क्योंकि मोता में हाथ बांधना है और अल मुदव्वरतुल कुबरा में हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना है, तो उसको ज्यादा अहमियत होगी, अल मुदव्वरतुल कुबरा को ज्यादा अहमियत होगी और वो उसको फॉलो करते हैं। जनाब यही सेम केस यही है। मोता इमाम मालिक में रफ़्ल यदैन है और अल मुदव्वरतुल कुबरा में इमाम मालिक से डायरेक्ट सवाल किए, आपने फरमाया ला आरिफु, मैं ऐसे रफ़्ल यदैन को नहीं जानता जो रुकू को जाते हुए किया जाता है, रुकू से उठते हुए किया जाता है, मैं इसको जानता ही नहीं हूं। इसके खिलाफ आपने दलाइल दिए हैं। दोस्तों आपने देखा सुना किस तरह से मिसाल दी, बिल्ली की दुम कट गई। जनाब कहाँ लिखा हुआ है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रफ़्ल यदैन नहीं करते थे? अब आपने देख लिया। अल मुदव्वरतुल कुबरा में ये है 165 सफ़ा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब। उनके शागिर्द ने उनसे सवाल किया, फरमाया ला आरिफ हूं, मैं ऐसे रफ़्ल यदैन को नहीं जानता जो रुकू को जाते हुए किया जाता है, रुकू से उठते हुए किया जाता है। तो इमाम मालिक तो इसके मुनकिर हैं और बल्कि लिखते हैं कि ये मकरूह है, रफ़्ल यदैन करना मकरूह है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। तो क्या उन्होंने तौहीद का किला गिरा दिया? तो इमाम मालिक तो इमाम बुखारी के उस्तादों में से है, तो क्या इमाम बुखारी उनको थप्पड़ लगाया इल्मी? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। किस तरह की गंदी ज़बान है, किस तरह की ये बातें कर रहा है। आगे आप देखिए इसका और मजीद ऑपरेशन। सवाल है रफ़्ल यदैन सुन्नत है या फर्ज? तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि जो बगैर रफ़्ल यदैन के पढ़ी है वो माफ है या नहीं है? हम ये कहेंगे कि जो बंदा जानबूझ के सुन्नत को छोड़ता है, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई है, उनमें से एक शख्स वो भी है जो जानबूझ के मेरी सुन्नत को छोड़े। चलो एलो ले लो जवाब फिर। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यानी जो रफ़्ल यदैन को छोड़ेगा इसके नज़दीक वो लानती है। तो इमाम मालिक भी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस तरह हुए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के 15 शागिर्द, इब्न मसूद के शागिर्द और कसीर तादाद में मुहद्दिसीन और फुक़हा। देखिए किस तरह की, अब अपने आप को कैसे झूठा करता है, जरा ये भी देखिए। अली भाई अगला सवाल है कि आपने कई मरतबा ये हदीस बयान की है कि 6 लोगों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, जिनमें से एक मेरी सुन्नत को तर्क कर देने वाला भी है। चुनाचे इस दिन में जो लोग फर्ज नमाज से जुड़ी हुई 12 सुन्नत मौक़दा छोड़ देते हैं, क्या वो लोग लानत के मुस्तहिक नहीं करार पाएंगे? वजाहत फरमा दें। और नंबर 3, वो सुन्नतें जो हुजूर ने फर्ज के तौर पे तालीम फरमाई है, दीन में जरूरी जारी की है और उसके छोड़ने पे वईद बताई है, उसको छोड़ने वाला भी लानती है। उसको छोड़ने वाला लानती, यानी जिसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फर्ज के तौर पर जारी किए हैं और फरमाया अगर कोई नहीं करेगा तो उस पर लानत होगी, उसके बारे में ये कह रहा है कि जनाब उस पर लानत होगी। अब बताएं रफ़्ल यदैन के बारे में कौन सी रिवायत है जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रफ़्ल यदैन करो, नहीं करोगे तो गुनाह होगा? किसी एक ज़ईफ़ रिवायत में भी आप बता दें। अब जनाब इसी का जवाब खुद क्या दे रहा है, देखिए। अब आ जाए ये फर्ज की जो 12 सुन्नतें हैं, किस ज़ईफ़ हदीस के अंदर सही तो आई नहीं है। ये 12 सुन्नतें छोड़ने वाले के ऊपर हुजूर की कोई वईद मौजूद है? हाँ, इसका तो उसलूब भी बिल्कुल डिफरेंट है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो फर्ज के सिवा 12 रखते कायम रखेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में महल अता। ये है फजीलत। वईद बताएं किधर है? वईद बताएं किधर है? मिर्जा साहब आप बताएं वईद किधर है जो आपने इतनी बड़ी तोहमत लगाई कि जनाब जो रफ़्ल यदैन नहीं करते उन पर लानत। अब आप बताएं ना वईद किधर है? किस रिवायत में है कि जो रफ़्ल यदैन नहीं करता उस पर गुनाह है या जो कुछ है?
दोस्तों देखा आपने किस तरह दो नंबरी करते हैं। जब इसने आगे तबलीग देना शुरू कर दी, जनाब सुन्नतें छोड़ दें, सिर्फ फर्ज पढ़ लें। जब हमने बताया कि सुन्नत की बड़ी अहमियत है, आप अलैहिस्सलाम ने इसकी फजीलत बयान की है, तो कहते जनाब वईद बताएं। अब आप बताएं ना वईद, रफ़ यदैन ना करने वालों के लिए क्या वईद है। तो किस तरह ये अपने आप को जलील व ख्वार करता है। और बल्कि हम आपको दिखाते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रफ़ यदैन करने से मना फरमाया है। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नसाई शरीफ में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये नसाई शरीफ की हदीस है कि जाबिर बिन समरा कहते हैं खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम बाहर से तशरीफ लाए, हम नमाज में रफ़ यदैन कर रहे थे। राफिउ अयदीना फिस्सला, नमाज में रफ़ यदैन कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, पढ़ो उसकुनु फिस्सला, नमाज सुकून के साथ पढ़ो। और मुस्लिम में भी यही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो यहां तो मना हो रहा है नफल यदैन, ये तो मनसूख हो चुका है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मकरूह है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये मनसूख है। हाँ, जो मुज्तहिदीन है, मसलन इमाम अहमद बिन हंबल है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहिमा है, ये कहते हैं कि हमारे पास हदीसें रिवायत है जिसमें बहुत सारी रिवायात हैं, तो वो अपने इज्तिहाद पे कहते हैं कि ये मुस्तहब है, कोई फर्ज वाजिब नहीं कहता। इस्लाम 360 खोल के देखें, 257 नंबर रिवायत की तफसीर में लिखा हुआ है कि ये मुस्तहब है। तो मुस्तहब पर इस तरह गंदी जबान इस्तेमाल नहीं की जाती, जो करते वो भी कहते हैं कि मुस्तहब है। अल्लामा मुंजरी ने सही मुस्लिम का मुख्तसर सही मुस्लिम लिखी, उसमें भी बाब बांधा है कि मुस्तहब रफ़ यदैन करना, फर्ज वाजिब नहीं है। और इसने क्या कहा, हमने इतनी जनाब वीडियोस बनाई हैं कि अब ये रफ़ यदैन फर्ज हो गया है। नऊज़ुबिल्लाह, ये इस्लाम में दीन में इजाफी चीज नहीं है। और इसके फॉलोअर्स क्या कहते हैं जनाब, कहते हैं जनाब ये इस्लाम में तौहीद का किला है, यानी जो रफ़ यदैन नहीं करते वो तौहीद के किले को गिरा रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी एक रिवायत में भी इस ये सुन्नत कह रहे हैं, हालांकि सारे मानने वाले कहते हैं कि मुस्तहब, यानी एक कभी कब आप अलैहिस्सलाम ने किया उसको मुस्तहब कहते हैं, जो मुस्तकिल तौर पर आप अलैहिस्सलाम करते उन्हें सुन्नत कहते हैं। तो कोई भी इसको सुन्नत नहीं कहता, इसको मुस्तहब कहते हैं, क्योंकि किसी भी रिवायत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का जो तरीका सिखाया है उसमें रफ़ यदैन करने का जिक्र ही नहीं फरमाया। 6667 नंबर बुखारी में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबी को नमाज का तरीका सिखाया है, उसमें रफ़ यदैन का जिक्र नहीं किया। अगर ये फर्ज होता, वाजिब होता तो आप अलैहिस्सलाम जरूर बताते। फिर जनाब इसके चेले उठते हैं, वो पहले रफ़ यदैन का भी जिक्र नहीं, हमने कब कहा पहला रफ़ यदैन फर्ज है या वाजिब है, वो भी मुस्तहब है, फर्ज वाजिब तो है ही नहीं। और मुस्लिम में जो हदीस है, जाबिर बिन समरा कहते हैं कि हम नमाज में रफ़ यदैन कर रहे थे, पहला हो चुका था उसके बाद हम रफ़ यदैन कर रहे थे। और जो हमेशा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अब्दुल्ला बिन मसूद, जिनकी रिवायत को जानबूझ के ज़ईफ कहते हैं, हालांकि कसीर तादाद मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है कि आओ मैं तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता हूं, पहला रफ़ यदैन किया, उसमें बाद आपने रफ़ यदैन नहीं किया। ये एक इल्मी इख्तिलाफ है, जिस जो करने वाले हैं वो इसको मुस्तहब समझते हैं, जो नहीं करते वो कहते हैं ठीक है, नहीं मनसूख हो चुका है। लेकिन इतना आगे जाना कि ये फर्ज है, इस्लाम का किला है, तौहीद जो नहीं करेगा जो है वो जालिम है, और वो उसने इस्लाम को गिरा दिया, तौहीद के किले को गिरा दिया, फर्ज छोड़ दिया, उसको इल्मी फकी मिल गई जनाब, थप्पड़ मार दिया। कैसी बातें हैं। अगर इतना फर्ज वाजिब होता तो मौला अली रदी अल्लाह तआला के शागिर्द जो हैं वो जरूर करते, कहते वो सुस्ती की वजह से नहीं करते। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजरत अली रदी अल्लाह तआला के शागिर्दों को सुस्ती का लेबल लगा दिया कि वो सुस्त है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल अमान वल हफीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।